Hello children, I hope you all are doing good. Let's start today's chapter more on PowerPoint 2016. In this chapter, you will learn about creating photo album, ink equations, screen recording, change office theme, comments, smart lookup, ink annotations, viewing a presentation, slideshow and rearranging slides. Microsoft PowerPoint is a powerful presentation software developed by Microsoft. It is a standard component of the company's Microsoft Office suite. It is a software application which is designed to present the graphics information in the form of slideshow. It makes use of text, pictures, clip arts, charts, tables, sound and animation effects to create the attractive slides which can present in the audience. User can also add audio and video clips to the presentation. A presentation consists of various slides which are arranged in a systematic order. A slide is a page which can be created to give information on a topic. This chapter allows you to learn more about PowerPoint and interesting features which makes the presentation more interesting. अच्छा देखिए, ये आपका जो माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट आपका सॉफ्टवेयर है, इसको डिज़ाइन किया गया है कि ग्राफिक्स इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने के लिए स्लाइड शो की फॉर्म में. ओके इसमें आप यूज़ कर सकते हैं टेक्स्ट का, पिक्चर्स है, क्लिप आर्ट्स है, चार्ट्स है, टेबल, साउंड, एनिमेशन, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे कि आप अपनी स्लाइड्स को अट्रैक्टिव बना सकते हैं और अपनी ऑडियंस को प्रेजेंट कर सकते हैं. राइट इसके अलावा देखिए, ऑफ कोर्स ऑडियो वीडियो क्लिप्स भी आप अपनी प्रेजेंटेशन में ऐड कर सकते हैं. प्रेजेंटेशन में आपकी बहुत सारी स्लाइड्स होती हैं जो एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज्ड होती हैं. स्लाइड आपका पेज होता है जिसको क्रिएट कर सकते हैं टू गिव इन्फॉर्मेशन ऑन अ टॉपिक. राइट तो इसमें आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स जो हैं इस चैप्टर में पावरपॉइंट के बारे में पता चलेंगे. ओके जिससे कि आप अपनी प्रेजेंटेशन को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं. ओके सो लेट्स स्टार्ट. नंबर 1, क्रिएटिंग फोटो एल्बम. Photo album feature of PowerPoint 2016 allows you to insert many photographs in a presentation all at once. You do not need to create a slide one at a time and insert your photo. You can create a photo album in which you can insert bunch of photographs quickly on PowerPoint slides. To create a photo album, the steps are as follows. Number 1, go to Insert tab. Number 2, in Images group, click on drop-down arrow of Photo Album. Number 3, from the drop-down list, select New Photo Album option. Number 4, a Photo Album dialog box opens. Number 5, in Insert Picture from section, click on File/Disk button. Number 6, an Insert New Picture dialog box will appear on the screen. Number 7, browse and select as many pictures and click on Insert button. Number 8, the pictures will be added to Pictures in Album box in Photo Album dialog box. Number 9, the picture can be viewed by you. Number 10, you can see the up and down arrow below the picture box. These arrows are used to move the selected pictures up and down. Number 11, click on Remove button to delete the selected picture. Number 12, choose the picture layout and frame shape for the album. Number 13, click on Create button. And number 14, PowerPoint creates a picture album slide for you. Okay. अब आपको क्या करना है, आपको फोटो एल्बम क्रिएट करनी है. तो देखिए इसमें आप बहुत सारी फोटोग्राफ्स को आप अपनी प्रेजेंटेशन में ऐड कर सकते हैं. ओके तो आपको मतलब कि स्लाइड जो है वो क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है वन एट अ टाइम, और उसके बाद आप अपनी पिक्चर इंसर्ट ऐसा करें, ऐसा ज़रूरी नहीं है. ओके तो आप फोटो एल्बम को क्रिएट कर सकते हैं जिसमें आप बंच ऑफ फोटोग्राफ्स को क्विकली इंसर्ट कर सकते हैं. कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले आप जाएंगे इंसर्ट टैब पे, फिर इमेजेस ग्रुप में आप क्लिक करेंगे फोटो एल्बम पे. इसके बाद इस ड्रॉप डाउन लिस्ट से आप सिलेक्ट करेंगे न्यू फोटो एल्बम ऑप्शन को. फिर फोटो एल्बम डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया. फिर इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम सेक्शन से आप क्लिक करेंगे File/Disk ऑप्शन पे. फिर इंसर्ट न्यू पिक्चर अब डायलॉग बॉक्स आपका अपीयर हो गया. ओके अब आप जितनी पिक्चर सिलेक्ट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं. एंड देन हम क्लिक करेंगे इंसर्ट बटन पे. अब आपकी देखिए जो पिक्चर्स हैं, पिक्चर्स में आपकी ऐड हो गई हैं एल्बम बॉक्स के. ये जो आपका फोटो एल्बम डायलॉग बॉक्स है, इनको व्यू कर सकते हैं आप. ओके अब आप देखिए आप क्या करेंगे,
अभी आपको देखिए अप एंड डाउन एरो नजर आ रहा है बिलो द पिक्चर बॉक्स, है ना। इससे आप क्या कर सकते हैं, सिलेक्टेड पिक्चर्स को हम अप एंड डाउन मूव करा सकते हैं। फिर रिमूव बटन पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट पिक्चर को अगर डिलीट करना है तो। फिर पिक्चर लेआउट को चूज करेंगे एंड फ्रेम शेप को, क्रिएट बटन पे क्लिक। अच्छा देखिए अब आपकी पिक्चर एल्बम स्लाइड आपकी क्रिएट हो गई। ओके, नेक्स्ट, ink equations. PowerPoint offers a new feature according to which you can insert the maths equation in your slides by writing them directly with the help of some pointing device. For this, you can make use of mouse or stylus or some touchpad and write the equation directly on screen or pad. PowerPoint will automatically change your written equation into that text. Follow the given steps for this purpose. Number 1, click on Insert tab. Number 2, in Symbols group, select drop down arrow of Equation button. Number 3, click on the Ink Equation option. Number 4, a Math Input Control dialog box appears on the screen. Number 5, move the mouse pointer on the grid area and the shape of pointer changes to a dot shape. Number 6, now start typing the equation. Number 7, click on Insert button. And number 8, an equation will be inserted in the slide. Okay, अब आपको क्या करना है, देखिए एक आपका न्यू फीचर है इसमें जिसके अकॉर्डिंग आप मैथ्स इक्वेशंस को भी इंसर्ट कर सकते हैं अपनी स्लाइड्स में। ओके, आप मतलब डायरेक्टली उनको लिख सकते हैं कुछ पॉइंटिंग डिवाइसेस की हेल्प से। तो इसके लिए आपको माउस या स्टाइलस का यूज़ करना पड़ेगा, कुछ टच पैड का, और इक्वेशन को आप डायरेक्टली स्क्रीन या पैड पे लिख सकते हो। ओके, तो देखिए कैसे करना है। सबसे पहले क्लिक करेंगे इंसर्ट टैब पे, फिर सिंबल्स ग्रुप में आपका जो इक्वेशन बटन है इसको सिलेक्ट करना, फिर क्लिक करेंगे इंक इक्वेशन ऑप्शन पे। अब ये देखिए आपके पास डायलॉग मैथ इनपुट का डायलॉग बॉक्स अपीयर हो रहा है। फिर माउस पॉइंटर को आप मूव करेंगे ग्रिड एरिया पे, और देखिए अब पॉइंटर का जो शेप है वो डॉट शेप में चेंज हो गया आपका। अब आप कोई भी इक्वेशन लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा है a + a² + b² माइनस c²। फिर क्लिक करेंगे इंसर्ट बटन पे और इक्वेशन आपकी इंसर्ट हो गई है स्लाइड पे, है ना। Fact file. A stylus is a pointing device which looks like a pen and allows you to write directly on screen or special pad. Stylus आपका pointing device होता है जो कि पेन की तरह दिखता है, जिसे आप डायरेक्टली स्क्रीन पे लिख सकते हैं या फिर स्पेशल पैड पे। ओके, Fact file. While writing the equation, if you want to delete something, use eraser option, and to clear the grid box, use clear option. Okay. जब आप इक्वेशन लिखते हैं, लिखते टाइम अगर आप कुछ चीज़ डिलीट करना चाहते हैं तो इरेजर ऑप्शन का यूज़ करें, और ग्रिड बॉक्स को क्लियर करने के लिए क्लियर ऑप्शन का यूज़ करेंगे। एक्टिविटी टाइम. Collect the pictures of any festival that you have celebrated with your family. Create a photo album in PowerPoint and save it with name My Album. अच्छा देखिए, कोई भी फेस्टिवल जो आपने अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट किया है ना, उसके पिक्चर्स आपको कलेक्ट करनी है, फोटो एल्बम आपने पावर पॉइंट में बनाना है, और फिर उसका नाम रखना है माई एल्बम। ओके, स्क्रीन रिकॉर्डिंग. PowerPoint offers you a very important feature that allows you record your screen and add narration to it. Number 1, open PowerPoint 2016. Number 2, create a new slide. Number 3, go to Insert tab. Number 4, in Media Group, select Screen Recording option. Number 5, a small pop-up window comes at the top of the screen. Number 6, click on Select Area button and select the area of the screen which you want to record. Number 7, a red dotted rectangular box appears to the selection. Number 8, click on Audio option to turn it on. This will help you to insert an audio or sound with the recording. Number 9, click on Record Pointer to record the mouse pointer also. Number 10, click on Record button to start the recording. Number 11, a countdown box comes on the screen which helps you record within few seconds. Number 12, and the recording starts. Number 13, when you are done, move the mouse pointer at the top of the window and a small pop-up window comes on the screen. Click on Stop button. You will see that the recorded clip will get inserted to the PowerPoint slide. See,
आप अपनी स्क्रीन को ना रिकॉर्ड कर सकते हो और उसमें फिर आप नरेशन ऐड कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले हमने पावर पॉइंट 2016 को ओपन करेंगे, न्यू स्लाइड क्लिक करेंगे, इंसर्ट टैब पे जाएंगे, फिर मीडिया ग्रुप में स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। ओके, अब देखिए स्मॉल पॉपअप विंडो अपीयर हो गई है। क्लिक करेंगे आप सिलेक्ट एरिया बटन पे। ओके, अब स्क्रीन के उस एरिया को सिलेक्ट करना है जहां पे जिसको आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं। एक रेड डॉटेड रेक्टेंगुलर बॉक्स अपीयर हो रहा है सिलेक्शन पे, फिर क्लिक करेंगे ऑडियो ऑप्शन पे, इससे आपका ऑडियो इंसर्ट हो जाएगा। फिर क्लिक करेंगे आप रिकॉर्ड पॉइंटर पे, माउस पॉइंटर को रिकॉर्ड करने के लिए, फिर क्लिक करेंगे रिकॉर्ड बटन, आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। ओके, अब ये देखिए काउंटडाउन बॉक्स आपका स्क्रीन पे आ रहा है ना, फिर रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। और जैसे ही ये ख़त्म हो जाए तो माउस पॉइंटर इसको मूव करना है विंडो के टॉप पे और एक स्मॉल पॉपअप विंडो आएगी स्क्रीन पे, फिर हमने करना है क्लिक स्टॉप बटन। और देखिए आपका ये जो रिकॉर्डेड क्लिप है ये आपके पावर पॉइंट स्लाइड में इंसर्ट हो गई। ओके, फैक्ट फाइल, इफ़ यू डू नॉट वांट टू रिकॉर्ड द पॉइंटर अनसेलेक्ट द रिकॉर्ड पॉइंटर बटन। अगर आप नहीं चाहते पॉइंटर को रिकॉर्ड करना तो आप अनसेलेक्ट कर सकते हैं रिकॉर्ड पॉइंटर बटन को। फैक्ट फाइल, प्रेस विंडोज प्लस शिफ्ट प्लस आर टू स्टार्ट द रिकॉर्डिंग, प्रेस विंडोज प्लस शिफ्ट प्लस क्यू टू स्टॉप रिकॉर्डिंग। ओके, आप विंडोज़ को प्रेस करेंगे प्लस शिफ्ट प्लस आर जिससे कि आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, और अगर आप प्रेस करते हैं विंडोज़ प्लस शिफ्ट प्लस क्यू तो इससे आपकी रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी। ओके, चेंजिंग ऑफिस थीम, when we start PowerPoint 2016, its title bar, ribbon, background and other components come on the screen in orange color. It is because a colorful theme is applied on it. A theme is a predefined combination of colors, fonts and effects. Office 2016 provides 3 built-in themes that can be applied to PowerPoint 2016. These themes include colorful, dark gray, white. अच्छा देखिए, जब आप 2016 को यूज़ करते हैं, स्टार्ट करते हैं, आई मीन PowerPoint 2016 को, इसका जो टाइटल बार है, रिबन है, बैकग्राउंड है, जो दूसरे कंपोनेंट्स हैं ये ऑरेंज कलर पे आते हैं, राइट, क्योंकि जो कलरफुल थीम है इसमें अप्लाई हो रखी है। तो थीम आपकी ना एक प्री डिफाइंड कॉम्बिनेशन है कलर्स का, फॉन्ट्स का, इफेक्ट्स का। ओके, तो ये जो आपका ऑफिस 2016 है इसमें काफ़ी बिल्ड इन आपके 3 बिल्ड इन थीम्स हैं जिससे कि आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, इसमें आपके देखिए कौन सी हैं थीम्स, कलरफुल, डार्क ग्रे और वाइट। टू चेंज द ऑफिस थीम द स्टेप्स आर एज फॉलोज। नंबर 1, ओपन PowerPoint 2016. Number 2, click on file menu. Number 3, a drop down list comes on the screen, select options, option. Number 4, click on drop down arrow of office theme. And number 5, select the desired theme and note down the difference. Okay, अब आपको क्या करना है, ऑफिस थीम को चेंज करना है। ओपन करेंगे आप PowerPoint 2016 को, क्लिक करेंगे फाइल मेन्यू पे। ओके, अब ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है ना इसमें से आपने सिलेक्ट करना है ऑप्शंस को, फिर क्लिक करेंगे जो ऑफिस थीम का ड्रॉप डाउन एरो है, फिर डिजायर्ड थीम को सिलेक्ट किया और देखिए डिफरेंस देखिए, राइट। कमेंट्स, a comment is just like a note that can be attached to a word, line or the whole slide. It acts like a feedback from the reviewer. Comment can be used to get the feedback from the others about your presentation. You can turn the comments on and off according to your requirements. कमेंट आपके एक नोट की तरह होता है जो आपके अटैच होता है वर्ड, लाइन या पूरे स्लाइड के साथ। ये एक फीडबैक की तरह काम करता है फ्रॉम द रिव्यूअर। कमेंट का आप यूज़ कर सकते हैं फीडबैक लेने के लिए दूसरों से, मतलब अपनी प्रेजेंटेशन के बारे में। ओके, तो आप कमेंट्स को ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। To add comments in a slide area, the steps are as follows. Number 1, select a word or object on which you want to add comments. Number 2, click on Review tab. Number 3, in Comments group, select New Comment option. Number 4, a comment task pane is displayed on the right side of the window. Number 5, you can also see a comment symbol with the selected word. Now,
Type some comment as shown in the figure. Click outside the box. Number 8, click on close button at the top right corner of the task pane. Number 9, to view the comment, go to review tab. Click on show comments drop down button from comments group. Number 10, click on comments pane and comment task pane is displayed containing the comment. Okay. अच्छा, अब आपको क्या करना है, कमेंट्स को ऐड करना है. तो कैसे करेंगे, वर्ड या ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे जिसमें आप कमेंट्स को ऐड करना चाहते हैं. फिर आप क्लिक करेंगे रिव्यू टैब पे. फिर कमेंट्स ग्रुप में आप सिलेक्ट करेंगे न्यू कमेंट ऑप्शन को. अब देखिए कमेंट टास्क पे डिस्प्ले हो रहा है. अच्छा, अब देखिए कमेंट सिंबल आपको दिखेगा सिलेक्टेड वर्ड के साथ. अब आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, कोई भी कमेंट, राइट, एनीथिंग यू कैन टाइप. ओके, फिर बॉक्स की आउटसाइड जाके आपने क्लिक करना है. फिर क्लोज बटन पे क्लिक किया. ओके, अब आपको कमेंट देखना है तो रिव्यू टैब पे जाएंगे, क्लिक करेंगे शो कमेंट्स, आपका ड्रॉप डाउन बटन है इस पे. ओके, फिर क्लिक करेंगे कमेंट्स पेन पे और देखिए कमेंट टास्क पेन आपका डिस्प्ले हो रहा है जिसमें आपने जो कमेंट आपने टाइप किया था वो डिस्प्ले हो रहा है, राइट. फैक्ट फाइल, डायरेक्टली क्लिक ऑन कमेंट सिंबल टू व्यू द कमेंट. देखिए आप कमेंट सिंबल पे डायरेक्टली क्लिक करेंगे, इससे आप कमेंट को देख सकते हैं. ओके, next, smart lookup. Smart lookup is a very important feature of PowerPoint 2016. Using this feature, we can find the information regarding any word on the web using Microsoft's Bing search engine. Using this feature, you do not need to open a web browser and type the keyword to search it manually. देखिए ये काफ़ी important feature है आपका smart lookup. तो इस feature की help से हम कोई भी वर्ड पे जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए उसे हम सर्च आउट कर सकते हैं. ओके, इस फीचर्स का यूज़ करते हुए आपको वेब ब्राउज़र खोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. ओके, यू कैन यूज़ दिस फीचर इन द फॉलोइंग वे. सिलेक्ट द वर्ड विच यू वांट टू सर्च. नंबर 2, गो टू रिव्यू टैब. नंबर 3, इन इनसाइट्स ग्रुप सिलेक्ट स्मार्ट लुकअप ऑप्शन. नंबर 4, अ स्मार्ट लुकअप task pane opens to the right side of the window. Number 5, it displays the web results for the selected word. ओके, अब देखिए आपको क्या करना है, किस तरह से करेंगे. सबसे पहले वो वर्ड सिलेक्ट करना है जिसे आप सर्च करना चाहते हैं. ओके, फिर आप जाएंगे रिव्यू टैब पे. फिर इनसाइड ग्रुप में आप सिलेक्ट करेंगे स्मार्ट लुकअप ऑप्शन को. अब देखिए टास्क पेन ओपन होता है. अब देखिए इसमें आपके पास जो आपने वर्ड सिलेक्ट किया था उससे रिलेटेड रिजल्ट्स हैं. ओके, नेक्स्ट, इंक एनोटेशन. Office 2016 provides a very interesting feature which allows you to draw shapes or highlight text by using digital ink. This can be done by using some pointing device like mouse, stylus or touchpad. देखिए आपके पास ना Office 2016 में काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है जिससे कि आप शेप्स और को ड्रॉ कर सकते हैं, टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं डिजिटल इंक का यूज़ करते हुए. ओके, तो इसके लिए कुछ पॉइंटिंग डिवाइसेस होते हैं जिसकी हेल्प से आप ये कर सकते हैं, जैसे कि माउस है, स्टाइलस है या फिर टच पैड है. हैंड रिटन टेक्स्ट, यू कैन क्रिएट अ टेक्स्ट इन योर ओन हैंड राइटिंग टू. फॉर दिस द स्टेप्स आर एज फॉलोज. नंबर 1, गो टू रिव्यू टैब. नंबर 3, इन इंक ग्रुप सिलेक्ट स्टार्ट इंकिंग ऑप्शन. Number 3, a new pen tab is added to the ribbon and opened in front of you. Number 4, a new tab with the name Ink Tool comes on the screen with various tools. Number 5, by default, pen tool is selected. Number 6, select the colored pen from the pens group. Number 7, select the color and thickness of the pen by clicking on the drop down arrow of color and thickness options. Number 8, now write something on the blank area with the help of mouse or stylus. Okay. अच्छा, आप देखिए आप ना अपनी हैंड राइटिंग में भी टेक्स्ट क्रिएट कर सकते हैं. कैसे देखिए, सबसे पहले आप जाएंगे रिव्यू टैब में. फिर इंक ग्रुप में आपने सिलेक्ट करना है स्टार्ट इंकिंग ऑप्शन. ओके, अब देखिए न्यू पेन टैब ऐड हो चुका है रिबन में एंड ओपन हो चुका है. अच्छा देखिए, अब ये जो न्यू टैब है विद द नेम इंक टूल ये स्क्रीन पे आया. इसमें देखिए काफ़ी सारे टूल्स हैं. तो बाय डिफ़ॉल्ट पेन टूल आपका सिलेक्ट हो जाता है. फिर आपने कलर्ड पेन को सिलेक्ट करना है पेन्स ग्रुप से. ओके, फिर हम कलर और जो थिकनेस है पेन का
इसको सिलेक्ट करेंगे, ये जो आपके पास ऑप्शन है कलर एंड थिकनेस ऑप्शन पे क्लिक करके। अब आप कुछ भी लिख सकते हैं माउस या स्टाइलस की हेल्प से। ओके, और ये आपकी खुद की हैंड राइटिंग में आपका ये क्रिएट हो गया है टेक्स्ट, राइट। नेक्स्ट, हाईलाइटिंग टेक्स्ट. Just like we do on a sheet of paper, we can highlight text in a presentation. For this, the steps are as follows. Number 1, in Pens tab, select highlighter tool under right group. Number 2, select the type of highlighter from Pens group. Number 3, now click and drag the mouse to highlight the text. देखिए आप highlight कैसे करेंगे? सबसे पहले आप जाएंगे Pens tab पे, फिर आप हाइलाइटर टूल को सिलेक्ट करेंगे इट्स राइट ग्रुप के अंडर, फिर आप सिलेक्ट करेंगे पेन्स ग्रुप में से टाइप ऑफ हाइलाइटर। ओके, फिर इसको क्लिक करेंगे, ड्रैग करेंगे माउस को टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए। ओके, इंक टू शेप. We can draw shapes and at the same time convert your drawn shapes into common geometric shape. Number 1, go to Pens tab. Number 2, in right group, select pen tool. Number 3, select pen type, color and thickness of pen. Number 4, now draw some shape like rectangle with the help of mouse or touchpad. Number 5, in ink art group, select ink to shape option. It will get highlighted. Number 6, now draw a shape on the slide and you will observe that your drawn shape will be changed into geometrical shape. अच्छा देखिए, आप शेप्स को ड्रॉ कर सकते हैं और सेम टाइप पे अपनी ड्रॉन शेप्स को कन्वर्ट कर सकते हैं कॉमन जियोमेट्रिक शेप में। देखिए सबके लिए आप क्या करेंगे, पेन्स टैब में जाएंगे, फिर राइट ग्रुप में आपने पेन टूल को सिलेक्ट किया, पेन का टाइप, कलर और जो उसकी थिकनेस है इसको हम सिलेक्ट करेंगे। ओके, कोई भी शेप हम ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि रेक्टेंगल किया या ट्रायंगल भी हम कर सकते हैं माउस की हेल्प से। फिर इंक आर्ट ग्रुप में हम सिलेक्ट करेंगे इंक टू शेप ऑप्शन और ये हाईलाइट हो गया। फिर हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे शेप को स्लाइड पे। अब देखिए ड्रॉन शेप जो है आपकी वो चेंज हो गई ज्योमेट्रिकल शेप में, है ना। जैसे हमने ट्रायंगल को किया था तो ये ट्रायंगुलर शेप में कन्वर्ट हो गया आपका। फैक्ट फाइल, ओनली दोज शेप्स आर कन्वर्टेड दैट लुक सिमिलर टू कॉमन शेप्स, अदरवाइज द ड्रॉन इमेजेस विल रिमेन द सेम। देखिए वही शेप्स आपकी कन्वर्ट होंगी जो कि कॉमन शेप के सिमिलर होंगी, अदरवाइज जो ड्रॉन इमेजेस हैं वो सेम ही रहेगी, राइट। डिलीटिंग एनोटेशंस. Number 1, go to Pens tab. Number 2, in right group, click on Eraser drop down arrow. Number 3, select the type of eraser from the drop down list. Number 4, click and drag the mouse to erase the text or drawing. अच्छा, एनोटेशन को डिलीट करने के लिए आप क्या करेंगे, पेन्स टैब पे जाएंगे, फिर राइट ग्रुप में आप क्लिक करेंगे इरेजर पे। ओके, फिर टाइप ऑफ इरेजर को सिलेक्ट करेंगे, फिर आप क्लिक करेंगे, ड्रैग करेंगे माउस को जिससे कि आपका टेक्स्ट या ड्राइंग है वो इरेज हो सके। Selecting objects. You can see one selection tool in the right group of Pens tab called Lasso tool, which is used to select an object. Number 1, in right group, select Lasso tool. Number 2, the pointer converts its shape to plus symbol. Number 3, click and drag the mouse to select an object or part of it. Number 4, the object will get selected. Okay. अच्छा देखिए आपको ना एक सिलेक्शन टूल और मिलेगा, देख सकते हैं आपका जो राइटिंग ग्रुप से पेन टैब का वो है लासो टूल, जिसकी हेल्प से आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए आइए चलिए, देखिए राइट ग्रुप में जाएंगे, यहाँ से लासो टूल को सिलेक्ट किया। अब देखिए पॉइंटर जो है प्लस सिंबल में कन्वर्ट हो गया। क्लिक करेंगे, माउस को ड्रैग करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को या इसका पार्ट सिलेक्ट करने के लिए। ओके, तो ये सिलेक्ट हो गया। ओके, नाउ viewing a presentation. In PowerPoint, we can view the presentation in 5 different views. These views include normal view, outline view, slide sorter view, notes, page view and reading view. In this topic, we will discuss about all these views. All the view options are available in the view tab. अच्छा, अब देखिए PowerPoint में हम presentation को view करते हैं 5 different तरीके से, ठीक है। आपका है normal view, आपका है आउटलाइन व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, नोट्स पेज व्यू एंड रीडिंग व्यू। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल व्यू की।
This is the default view. It displays one slide by default. You can add more slides as required. It is basically used to display and create the slides. You can add text, graphics, audio, video, charts, pictures and animations to the slides. It is divided into two parts, slides navigation pane and slide pane. देखिए नॉर्मल व्यू ना आपका डिफ़ॉल्ट व्यू होता है और ये एक स्लाइड को बाय डिफ़ॉल्ट आपके डिस्प्ले करता है, राइट। इसमें आप और ज़्यादा स्लाइड्स को आप ऐड ऑन कर सकते हैं एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। तो ये बेसिकली यूज़ किया जाता है टू डिस्प्ले एंड क्रिएट द स्लाइड्स। इसमें आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, ग्राफिक्स ऐड कर सकते हैं, ऑडियो, वीडियो, चार्ट, पिक्चर, एनिमेशंस। अब अगेन ये ना आपके दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक तो है स्लाइड्स नेविगेशन पेन और एक है आपका स्लाइड पेन। सबसे पहले बात करते हैं स्लाइड्स नेविगेशन पेन। Slides navigation pane appears on the left side of the window. It contains the slides you have created in the form of thumbnails. When you click on a thumbnail, its slide opens on the right side in slide pane. You can rearrange the slides and add or delete the slides in this pane. And slide pane contains the large view of the slide. You can work in a slide, add text, content like graphs, pictures, shapes, etc. in this pane. स्लाइड नेविगेशन पेन जो है आपके विंडो के लेफ्ट साइड में आता है, ओके। और इसमें वो स्लाइड्स होती हैं जो आपने क्रिएट किए हैं थंबनेल्स की फॉर्म में। तो जब आप थंबनेल पे क्लिक करते हैं तो स्लाइड ओपन होती है राइट साइड पे। आप स्लाइड्स को रीअरेंज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं या स्लाइड्स को डिलीट कर सकते हैं इस पेन में। अब स्लाइड पेन में क्या होता है कि आपका लार्ज व्यू होता है स्लाइड का। आप इस पे स्लाइड पे काम कर सकते हैं, टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, आपके जैसे ग्राफ्स है, पिक्चर्स है, शेप्स है, आप उनको ऐड कर सकते हैं, ओके। टू ओपन अ नॉर्मल व्यू, क्लिक ऑन व्यू टैब। Number 2, in presentation views group, select normal button. The normal view of presentation comes on the screen, okay। देखिए नॉर्मल व्यू को ओपन करना है, आप करेंगे क्लिक व्यू टैब पे, फिर आपके पास ये जो प्रेजेंटेशन व्यू ग्रुप है इसमें से सिलेक्ट करेंगे नॉर्मल बटन और देखिए आपका जो नॉर्मल व्यू है प्रेजेंटेशन का वो आ गया स्क्रीन पे, है ना। नेक्स्ट, आउटलाइन व्यू। द आउटलाइंस ऑफ ऑल द स्लाइड्स आर viewed in the outline view. It displays the text in all the slides and allows you to add notes for user reference. This window contains 3 panes, left pane, slide pane and notes pane. जो आउटलाइंस आपकी स्लाइड्स की आपकी आउटलाइन व्यू में व्यू की जाती है और ये टेक्स्ट को डिस्प्ले करता है इन स्लाइड्स में और आपको अलाउ करता है कि आप यूज़र रेफरेंस के लिए उसमें नोट्स को ऐड करें। अब इसमें ना 3 पेन्स होते हैं इस विंडो में, जो है आपका लेफ्ट, स्लाइड एंड नोट्स पेन, ओके। तो सबसे पहले है लेफ्ट पेन। द लेफ्ट पेन ऑफ द विंडो कंटेन्स द टेक्स्ट ऑफ ऑल द स्लाइड्स. It allows you to edit the text of the slides quickly and view the contents of all the slides. Click on the text. Its corresponding slide will open in slide pane. अच्छा देखिए, जो लेफ्ट पेन है आपका विंडो का, इसमें क्या है आपका सारे जो स्लाइड्स का टेक्स्ट है वो होता है। तो ये आपको टेक्स्ट को एडिट करने में अलाउ करता है क्विकली और आप जो है सारी स्लाइड्स का जो कंटेंट आप इसमें व्यू कर सकते हैं। Okay, next is slide pane. Slide pane shows a large view of the slide you have selected. It shows all the contents of a slide including text and images. अब slide pane जो है वो जिस स्लाइड को आपने टेक्स्ट किया ना उसका लार्ज व्यू शो करता है। इसके अलावा स्लाइड का वो जो कंटेंट है, चाहे उसमें टेक्स्ट है, इमेजेस है, सब को ये शो करेगा, ओके। Next, note panes. Note panes appears at the bottom of the window. It allows the user to add notes regarding the slide for user reference. Note पेन आपका विंडो के बॉटम में आपका आता है और ये यूज़र को अलाउ करता है कि वो यूज़र रेफरेंस के लिए ना वो नोट्स को ऐड कर सकता है, मतलब अपनी स्लाइड से रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है नोट्स है वो ऐड करना चाहता है तो, ओके। टू ओपन एन आउटलाइन व्यू द स्टेप्स आर एज फॉलोज। नंबर 1, क्लिक ऑन व्यू टैब. Number 2, in presentation views group, select outline button. Number 3, the outline view of presentation comes on the screen. Okay, अब आपका क्या है देखिए, आउटलाइन व्यू को ओपन करना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, व्यू टैब पे क्लिक करेंगे, फिर प्रेजेंटेशन व्यूज ग्रुप में सिलेक्ट करेंगे आउटलाइन बटन को। तो देखिए आपका जो आउटलाइन है ना, आउटलाइन व्यू है प्रेजेंटेशन का, आपका स्क्रीन पे आ गया, राइट। नेक्स्ट इज slide sorter view. It displays a miniature view of all the slides in a presentation. In slide sorter view, you can change the order of slides, copy or delete the slides, add transitions, animation effects, and set the timings for the slideshow.
To open slide sorter view, the steps are as follows. Number 1, click on View tab. Number 2, in Presentation Views group, select Slide Sorter button. Number 3, the Slide Sorter view of presentation appears. Okay. देखिए, अब Slide Sorter view क्या है कि आपकी जो स्लाइड्स का जो है आपका एक मिनिएचर व्यू ये आपका शो करता है, ठीक है। तो इसमें आप जो है जो ऑर्डर है स्लाइड्स के उनको चेंज कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं स्लाइड्स को या डिलीट कर सकते हैं, ट्रांजिशन, एनिमेशन, इफेक्ट, इन सब को ऐड कर सकते हैं और यहाँ तक कि टाइमिंग को भी सेट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे देखिए, स्लाइड सॉर्टर व्यू को ओपन, सबसे पहले व्यू टैब पे क्लिक, फिर आपका जो प्रेजेंटेशन व्यू ग्रुप है इसमें से स्लाइड सॉर्टर बटन को सिलेक्ट करेंगे, फिर स्लाइड सॉर्टर आप व्यू जो है आपका प्रेजेंटेशन का ये अपीयर हो गया। ओके, नेक्स्ट नोट्स पेज। नोट्स पेज व्यू इज यूज्ड टू क्रिएट स्पीकर नोट्स व्हिच इज हेल्पफुल फॉर द प्रेजेंटर व्हाइल गिविंग प्रेजेंटेशन। Notes page option is available on the View tab. It displays the notes page for the selected slide where you can create additional notes for the current slide. देखिए, नोट्स पेज व्यू जो है उसको यूज़ किया जाता है स्पीकर की नोट्स को क्रिएट करने के लिए जो प्रेजेंटर के लिए हेल्पफुल होते हैं प्रेजेंटेशन देते टाइम, ठीक है। तो नोट्स पेज ऑप्शन जो है वो अवेलेबल है आपका व्यू टैब पे। ये डिस्प्ले करता है नोट्स पेज को सिलेक्टेड स्लाइड के लिए। ओके, तो आप यहाँ पे एडिशनल नोट को क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए, नोट्स पेज व्यू को ओपन करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्लिक करेंगे व्यू टैब पे, फिर प्रेजेंटेशन व्यू ग्रुप में आप सिलेक्ट करेंगे नोट्स पेज व्यू बटन को और देखिए आपका ये जो प्रेजेंटेशन है नोट्स पेज व्यू आपका स्क्रीन पे आ गया। ओके, नेक्स्ट इज रीडिंग व्यू। PowerPoint reading view lets you view a presentation as it is shown in slideshow view, but within the application window versus full screen. The options you have for advancing through this view are almost identical to the options you have when viewing the presentation in slideshow view. ओके, अभी आपके पास जो पावर पॉइंट रीडिंग व्यू है ना, इससे आप अपनी प्रेजेंटेशन को देख सकते हैं एज इट इज़ जैसे ही आपके स्लाइड शो व्यू में दिखती है। ओके, बट विद इन द एप्लीकेशन विंडोज वर्सेस फुल स्क्रीन। तो देखिए, ऑप्शंस जो है आपके पास फॉर एडवांसिंग मतलब इस व्यू के थ्रू वो क्या है, वो आपके ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है, यानी सेम हैं उन ऑप्शंस के जो आप देखते हैं जब आप प्रेजेंटेशन को व्यू करते हैं स्लाइड शो व्यू में। ओके, टू एंटर पावर पॉइंट रीडिंग व्यू, Number 1, click the reading view button in the presentation views button group in the status bar. Alternatively, click the reading view button within the presentation views button group on the view tab in the ribbon. Okay. तो PowerPoint reading view को एंटर करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्लिक करेंगे आप reading view button जो आपका presentation view button group में है। Alternatively, click the reading view button within the presentation views button group on the view tab in the ribbon. Okay. अच्छा, PowerPoint reading view को एंटर करने के लिए आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, आपके पास ये जो reading view button को, ये जो आपका presentation view button group में है। Alternatively आप क्या कर सकते हैं, reading view button को क्लिक करेंगे within the presentation view button ग्रुप, ये आपके व्यू टैब में है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड शो। स्लाइड शो इज यूज्ड टू डिस्प्ले द प्रेजेंटेशन टू द ऑडियंस व्हाइल गिविंग प्रेजेंटेशन। दिस व्यू कैन बी यूज्ड टू शो और स्लाइड्स इन फुल स्क्रीन मोड। स्लाइड शो कैन बी स्टार्टेड फ्रॉम द फर्स्ट स्लाइड और फ्रॉम एनी स्लाइड. You can move from one slide to another on mouse click or automatically after the time set while giving the presentation. To exit from slideshow, click escape key from the keyboard. अच्छा देखिए, स्लाइड शो है उसको यूज़ किया जाता है प्रेजेंटेशन को डिस्प्ले करने के लिए ऑडियंस को जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं. तो इस व्यू को यूज़ किया जा सकता है मतलब कि आपको अपनी स्लाइड शो दिखानी हो फुल स्क्रीन मोड पे आप दिखा सकते हैं. ओके, तो स्लाइड शो आपकी स्टार्ट होती है फर्स्ट स्लाइड से या किसी भी स्लाइड से. ओके, तो आप एक स्लाइड को मूव कर सकते हैं टू अनदर माउस क्लिक से या ऑटोमेटिकली जब आपका टाइम अगर आप सेट कर देते हो. ठीक है, और अगर आपको स्लाइड से एग्जिट करना है तो आप एस्केप की को आप क्या कर सकते हैं, क्लिक करेंगे कीबोर्ड से. स्टेप्स टू स्टार्ट द स्लाइड शो. Number 1, go to slideshow tab. Number 2, in start slideshow group, click on from beginning option. It will start the slideshow from the first slide. Number 3, click on from current slide to start the slideshow from the current open slide.
If you click on present online, you will be able to broadcast the slideshow to the remote viewers. Number 5, if you select custom slideshow, it displays only the selected slides. चलिए तो स्टार्ट करते हैं स्लाइड शो. इसके लिए आप जाएंगे सबसे पहले स्लाइड शो टैब पे, फिर स्टार्ट स्लाइड शो ग्रुप में आप क्लिक करेंगे फ्रॉम बिगिनिंग ऑप्शन. अब ये स्लाइड को स्टार्ट करेगा फर्स्ट स्लाइड से. ओके, क्लिक करेंगे फ्रॉम करंट स्लाइड, जिससे कि जो स्लाइड शो है आपका करंटली ओपन स्लाइड से आपका शुरू होगा. और अगर आप प्रेजेंट ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं तो आप अपने स्लाइड शो को ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं रिमोट व्यूवर्स को भी. ओके, और अगर आप कस्टम स्लाइड शो को सिलेक्ट करेंगे तो ये सिर्फ सिलेक्टेड स्लाइड्स को ही डिस्प्ले करेगा. Okay, input devices. It accepts input from the user. It converts the data in binary form. It provides the data to CPU for processing. Example, keyboard, mouse, joystick, trackball, microphone, etc. देखिए input devices क्या है कि input accept करते हैं यूज़र से, ये डेटा को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ये डेटा प्रोवाइड करते हैं CPU को प्रोसेसिंग के लिए. ठीक है, तो एग्जाम्पल आपको ये सारे हैं जो दिए गए हैं. राइट, नेक्स्ट रीअरेंजिंग स्लाइड्स. The order of the slides can be changed in normal view, outline view and slide sorter view. In normal view, in slide sorter view, number 1, click or view tab and click the slide sorter button to open the presentation in slide sorter view. Number 2, select the slide thumbnail and drag it to the desired location and drop it. देखिए आपको करना है क्लिक और व्यू टैब और फिर क्लिक करना है स्लाइड सॉर्टर बटन को प्रेजेंटेशन को ओपन करने के लिए स्लाइड सॉर्टर व्यू में. फिर स्लाइड थंबनेल को सिलेक्ट करना है, ड्रैग करना है इसको डिजायर्ड लोकेशन तक और फिर अब इसे ड्रॉप कर देंगे. In outline view, number 1, click on view tab, outline view to open the presentation in outline view. Number 2, select the slide thumbnail and drag it to the desired location and drop it. You will see a horizontal line as you drag the slide. सबसे पहले आप क्या करेंगे आउटलाइन व्यू में, व्यू टैब पे जाएंगे, फिर आउटलाइन व्यू पे. ओके, फिर स्लाइड थंबनेल को सिलेक्ट करेंगे, इसको डिजायर्ड लोकेशन तक ड्रैग करेंगे, फिर ड्रॉप करेंगे. अच्छा देखिए आपको ये हॉरिजॉन्टल लाइन नज़र आ रही है ना जैसे जैसे आप स्लाइड को ड्रैग कर रहे हैं. ओके, नेक्स्ट समरी पॉइंट्स. Microsoft PowerPoint is a powerful presentation software developed by Microsoft. It is a standard component of the company's Microsoft Office suite. A slide is a page which can be created to give information on a topic. Photo album allows you to insert many photographs in a presentation all at once. In Ink Equation, you can insert the math equations in your slides by writing them directly with the help of some pointing device. PowerPoint provides a very interesting feature in which you can record your screen and also add narration to it. A predefined combination of colors, fonts and effects is called a theme. A comment is just like a note that can be attached to a word, line or the whole slide. Ink annotation allows you to draw shapes or highlight text by using digital ink. Normal view is a default view in which you work. It is basically used to display and create the slides. Outline view is used to display the outlines of all the slides. It displays the text in all the slides and allows you to add notes for user reference. Notes page view is used to create a speaker notes which is helpful for the presenter while giving presentation. Children, I hope आपको ये चैप्टर समझ आया होगा और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे.